الله نور السماوات والأرض مثل نوره كمشكاة فيها مصباح. اور سورہ مائدہ میں فرمایا يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میں ہوں آپ کا میزبان فضل نامہ رحمانی. آج مورخہ 13 اگست ہے. پیش ہے دوربین کی تازہ ترین پیشکش. آج دوربین کے اہم موضوعات ہیں: ہنڈنبرگ نے سیبی سربراہ سے کنسلٹنگ کلائنٹس کی پوری فہرست جاری کرنے کا مطالبہ کیا. آج کی دوربین میں جانیے اور دیکھیے اس معاملے میں اب تک کیا کچھ ہوا ہے. بنگلہ دیش میں ہندوؤں کے خلاف مبینہ تشدد پر شرد پوار کا کہنا ہے کہ محمد یونس سیکولر ہیں، وہ دو برادریوں میں دراڑ نہیں آنے دیں گے. انہوں نے مزید کیا کچھ کہا، تفصیلات میں ضرور دیکھیے. کانگریس پارٹی کی جنرل سیکریٹری پرینکا گاندھی واڈرا کا کہنا ہے کہ کسی بھی مذہب سماج میں مذہب ذات کے شناخت کی بنیاد پر تشدد ناقابل قبول ہے. انہوں نے بنگلہ دیش میں جاری سیاسی بحران پر فکر مندی کا اظہار کیا. بہار میں 1 کینڈیڈیٹ 1 رزلٹ کے مطالبے پر طلبہ نے زوردار احتجاجی مظاہرہ کیا. پولیس نے مظاہرین کو روکنے کے لیے لاٹھی چارج کا استعمال کیا. مظاہرین طلبہ کا کیا مطالبہ ہے، آج کی دوربین میں دھیان سے دیکھیے. مرکزی وزیر تعلیم دھرمیندر پردھان نے ہندوستان کی سرفہرست یونیورسٹیز کا نام جاری کیا ہے. آج کی دوربین میں دیکھیے ان یونیورسٹیز کی پوری ڈیٹیل. کانگریس پارٹی نے 4 انتخابی ریاستوں میں جارحانہ مہم کا منصوبہ بنایا ہے. اس سال 4 ریاستوں اور مرکز کے زیر انتظام علاقے میں اسمبلی انتخابات ہوں گے. کن ریاستوں میں انتخابات ہونے ہیں، تفصیلات میں جانیے. بہار میں واقع ایک مندر میں بھگدڑ مچنے سے 5 خواتین سمیت 7 عقیدت مندوں کی موت ہو گئی. بہار کے جہان آباد میں یہ المناک حادثہ پیش آیا. حزب اللہ نے اسرائیلی فوجی اڈے پر تقریباً 30 راکٹ داغے. لبنان کی حزب اللہ نے شمالی مقبوضہ فلسطینی علاقوں میں اسرائیلی فوجی اہداف پر درجنوں راکٹ داغے ہیں. آج کی دوربین میں جانیے اور دیکھیے غزہ کی تازہ اور موجودہ صورتحال. حماس نے جنگ بندی مذاکرات میں شرکت سے انکار کر دیا ہے. حماس کا کہنا ہے کہ پہلے منظور شدہ تجاویز کو لاگو کرنے کا منصوبہ پیش کرے. آج دوربین میں دیکھیے گا قد بڑھانے کے لیے کروائی گئی ٹانگوں کی سرجری جو ایک خوفناک تجربہ ثابت ہوئی. آپ ہمیں یوٹیوب پر دیکھنے کے علاوہ ہمارے تمام سوشل میڈیا پیجز پر بھی فالو کر سکتے ہیں. آپ فکر و نظر اردو کا پروگرام دوربین دیکھ رہے ہیں. امریکی شارٹ سیلر فرم ہنڈنبرگ ریسرچ کی رپورٹ ایک بار پھر سرخیوں میں ہے. ہنڈنبرگ نے الزام لگایا ہے کہ سیبی کے سربراہ اور ان کے شوہر نے اڈانی گروپ کے غیر ملکی فنڈز میں حصہ لیا ہے. رپورٹ میں اڈانی گروپ اور سیبی کے درمیان ملی بھگت کا بھی الزام لگایا گیا ہے. تاہم سیبی چیف مادھوی پوری بوچ اور ان کے شوہر دھول بوچ نے ان الزامات کو مسترد کر دیا ہے. دونوں بوچ کا کہنا ہے کہ کچھ بھی نہیں چھپایا گیا، الزامات میں کوئی صداقت نہیں. ساتھ ہی اڈانی گروپ نے ان الزامات کو بے بنیاد قرار دیتے ہوئے اسے منافع کمانے اور بدنام کرنے کی سازش قرار دیا. اس معاملے پر سیاسی بیان بازی بھی تیز ہو گئی ہے. اس پورے معاملے پر سوالات اٹھ رہے ہیں اور ماہرین اس کے پیچھے غیر ملکی سازش کا شبہ بھی ظاہر کر رہے ہیں. آئیے جانتے ہیں سیبی کے انکشافات کے پیچھے کیا کھیل ہو رہا ہے. در حقیقت ہنڈنبرگ نے وسل بلوور دستاویزات کی بنیاد پر الزام لگایا ہے کہ سیکیورٹیز اینڈ ایکسچینج بورڈ آف انڈیا یعنی سیبی کی چیئرپرسن مادھوی پوری بوچ اور ان کے شوہر دھول بوچ کی ماریشس کی آف شور کمپنی گلوبل ڈائنامک اپارچونٹی فنڈ میں حصہ داری ہے. گوتم اڈانی کے بھائی ونود اڈانی نے اس کمپنی میں اربوں ڈالر کی سرمایہ کاری کی ہے. یہ رقم حصص کی قیمتوں میں اضافے کے لیے استعمال کی گئی ہے. یہ رپورٹ تقریباً 106 صفحات پر مشتمل ہے. سیبی اور اڈانی گروپ نے بھی اس معاملے میں جواب دیا ہے. ہنڈنبرگ نے الزام لگایا ہے کہ 22 مارچ 2017 کو مادھوی کی سیبی کے سربراہ بننے سے 5 سال قبل ان کے شوہر دھول بوچ نے ماریشس کے فنڈ ایڈمنسٹریٹر ٹرائیڈنٹ ٹرسٹ کو ایک ای میل بھیجا تھا جس میں انہیں مطلع کیا گیا تھا کہ ان کی اور ان کی اہلیہ کی گلوبل ڈائنامک اپارچونٹی میں سرمایہ کاری ہے.
धवल ने दरखास्त की थी कि उसे अकेले इस फंड को चलाने की इजाजत दी जाए। वाज़ेह है कि सेबी में अहम रोल पर तैनात होने से पहले धवल अपनी बीवी का नाम उससे हटाना चाहते थे। हिंडनबर्ग का कहना है कि उनके पास अडानी ग्रुप पर किए गए इंकशाफात के सबूत मौजूद हैं और 40 से ज्यादा आजाद मीडिया तहकीकात में भी यही बात सामने आई है, लेकिन सेबी की तरफ से कोई कार्रवाई नहीं की गई। इन इल्जामात की तहकीकात की जिम्मेदारी भी सेबी चीफ के हाथ में थी। इसके बरअक्स सेबी ने उन्हें 27 जून 2024 को वजह बताओ नोटिस जारी किया। उन्हें यह नोटिस अडानी के शेयर्स में मुख्तसर पोजीशन लेने की वजह से दिया गया है। अडानी ग्रुप ने हिंडनबर्ग की ताजा रिपोर्ट को मुकम्मल तौर पर मुस्तरद कर दिया है और यह भी कहा है कि ये नए इल्जामात इंतकाम की वजह से लगाए गए हैं। माहिरीन का कहना है कि हिंडनबर्ग के इल्जामात के पीछे मुनाफा का मुहर्रिक छुपा हो सकता है, चूंकि आखिरी रिपोर्ट के बाद से मार्केट में बड़े पैमाने पर हंगामा आराई थी। ऐसे में मार्केट नई रिपोर्ट से भी मुतासिर हो सकती है। स्टॉक मार्केट और अडानी स्टॉक कुछ वक्त के लिए मुतासिर हो सकते हैं, ताहम कोई बड़ा तवील मुद्दती असर या खतरा नहीं है। अगर कमी होती है तो सरमायाकार अडानी स्टॉक खरीदने पर गौर कर सकते हैं। मुख्तसरन ये समझ लीजिए कि सेबी क्या है। सेबी का कयाम दरअसल 1988 में हुआ था और इसे 1922 में कानूनी इदारे का दर्जा दिया गया था। इसका बुनियादी मकसद हिंदुस्तानी कैपिटल मार्केट को कंट्रोल करना और सरमायाकारों के मफादात का तहफ्फुज करना है। इससे कबल जनवरी 2023 में हिंडनबर्ग ने अडानी ग्रुप पर माली बेज़ाब्तगियों का इल्जाम लगाया था। इन इंकशाफात की वजह से भारतीय मार्केट बड़े पैमाने पर मुतासिर हुई थी। एनसीपी के सरबराह शरद पवार ने कहा है कि बांग्लादेश की उबूरी हुकूमत के सरबराह मोहम्मद यूनुस एक सेक्युलर रहनुमा हैं और वो इस बात को यकीनी बनाएंगे कि पड़ोसी मुल्क में मुख्तलिफ बिरादरियों के दरमियान कोई दरार न हो। बांग्लादेश में शेख हसीना की क़यादत वाली हुकूमत को इक़्तिदार से हटाए जाने के बाद से हिंदुओं पर मुबैना तशद्दुद की खबरें गर्दिश कर रही हैं। बांग्लादेश में तलबा ने कोटा सिस्टम के खिलाफ एहतजाज शुरू किया था, जो बाद में उस वक्त की वज़ीर आज़म शेख हसीना के खिलाफ बड़े मुजाहिरों में तब्दील हो गया था। बड़े पैमाने पर तशद्दुद के नतीजे में वो इख्तिदार से बेदखल हो गई। 84 साल माहिर इक्तिसादियात यूनुस ने बांग्लादेश की बुरी हुकूमत के चीफ एडवाइजर के तौर पर हल्फ उठाया। यह ओहदा वजीर आजम के मुसावी है। पुणे में नामानिगारों से बात करते हुए शरद पवार ने कहा कि उनकी जानकारी के मुताबिक यूनुस सेक्युलर है। वो कभी भी मुख्तलिफ बिरादरियों और मुख्तलिफ लिसानी ग्रुपों के दरमियान दरार पैदा नहीं करेंगे। बांग्लादेश में जारी बहरान को खत्म करने की कोशिश वहां की नौ तश्कील मोहम्मद यूनुस हुकूमत लगातार कर रही है। फिर भी तशद्दुद के वाकयात अभी तक पूरी तरह रुके नहीं है। कुछ मीडिया रिपोर्ट्स में अकलियती तबके पर मजालिम की बातें भी सामने आई हैं, जिस पर हिंदुस्तान के कई सियासी लीडरान ने फिक्र का इजहार किया है। इस सिलसिले में कांग्रेस जनरल सेक्रेटरी प्रियंका गांधी ने भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर पोस्ट के जरिए अपनी तशवीश का इजहार किया। अपने पोस्ट में प्रियंका गांधी वाड्रा ने लिखा कि पड़ोसी मुल्क बांग्लादेश में अकलियतों पर लगातार हमलों की खबरें परेशान करने वाली हैं। किसी भी मुहज़्ज़ब समाज में मजहब, जात, जुबान या शनाख्त की बुनियाद पर तफरीक, तशद्दुद और हमले नाकाबिले कबूल हैं। इसमें वो मजीद लिखती हैं कि उन्हें उम्मीद है कि बांग्लादेश में जल्द ही हालात मामूल पर आ जाएंगे और वहां की नौ मुंतखब हुकूमत हिंदू, ईसाई और बौद्ध मजहब को मानने वालों के लिए सिक्योरिटी को एहतराम यकीनी बनाएगी। बिहार के दारुल हुकूमत पटना में पीर के रोज सैकड़ों तलबा वन कैंडिडेट वन रिजल्ट के मुतालबे पर बीपीएससी दफ्तर का घेराव करने पहुंच गए। इस दौरान उन्होंने जोरदार मुजाहरा किया। नतीजाकार मुजाहिरीन और पुलिस के बीच तसादुम जैसे हालात पैदा हो गए और पुलिस ने हालात को काबू में करने के लिए लाठीचार्ज का सहारा लिया। दरअसल बीपीएससी के जरिए मुनक़िद टीचर भर्ती इम्तिहान में शामिल उम्मीदवार वन कैंडिडेट वन रिजल्ट और रिजल्ट से कबल काउंसलिंग का भी मुतालबा कर रहे हैं। इस सिलसिले में सैकड़ों उम्मीदवार गुज़िश्ता रोज पटना के बीपीएससी दफ्तर का घेराव करने पहुंचे। पुलिस ने उन मुजाहिरीन को हटाने की कोशिश की, लेकिन ये पुलिस की सुनने को तैयार नहीं थे। पुलिस ने मुजाहिरीन को हटाने के लिए हल्की ताकत का इस्तेमाल किया। ऐसे में मुजाहिरीन यहां से हट जरूर गए, लेकिन दोबारा वहां जमा हो गए। उनको हटाने के लिए पुलिस को भी लाठीचार्ज का सहारा लेना पड़ा। मरकजी वजीर तालीम धर्मेंद्र प्रधान ने गुज़िश्ता रोज NIRF रैंकिंग्स 2024 के नवी एडिशन का ऐलान कर दिया। हर साल जारी की जाने वाली यूनिवर्सिटियों की इस रैंकिंग को मुख्तलिफ पैमानों की बुनियाद पर तैयार किया जाता है। इस मर्तबा की रैंकिंग में IIT मद्रास ने पूरे मुल्क में अव्वल मकाम हासिल किया है। IISc बेंगलुरु ने NIRF रैंकिंग 2024 के मजमूई जुमरा में दूसरा मकाम हासिल किया है। IIT मद्रास इंजीनियरिंग जुमरा में भी पहले मकाम पर है।
नई दिल्ली के भारत मंडपम में मुनक्किद एक तकरीब के दौरान मजमूई तौर पर 13 जुमरों की रैंकिंग जारी की गई। इस साल मेडिकल जुमरा में एम्स दिल्ली ने टॉप किया है। हिंदू कॉलेज ने इस साल कॉलेज जुमरा में पहला मकाम हासिल किया है। IIM अहमदाबाद ने मैनेजमेंट जुमरा में सरफहरिस्त मकाम पाया है। इलाहाबादी IISc बेंगलुरु को सबसे बेहतरीन हिंदुस्तानी यूनिवर्सिटी और IIT मद्रास को सबसे बेहतरीन इंजीनियरिंग इदारा मुंतखब किया गया है। कांग्रेस पार्टी महाराष्ट्र, हरियाणा, झारखंड और मरकज के ज़ेर इंतजाम जम्मू और कश्मीर में होने वाले असेंबली इंतखाबात के पेश नजर जारहाना मुहिम की मंसूबाबंदी कर रही है। अंदरूनी जायजे के मुताबिक कांग्रेस इन रियासतों में अच्छी पोजीशन में है। पार्टी के अंदरूनी जराये ने बताया कि मंसूबे के तहत एक बड़ा पैगाम देने के लिए कांग्रेस वर्किंग कमेटी की मीटिंग 20 अगस्त को साबिक वजीर आजम राजीव गांधी की यौम पैदाइश पर मुंबई में होने का इम्कान है। इसके अलावा चारों रियासतों में राहुल गांधी और पार्टी सरबराह मल्लिकार्जुन खड़गे की रैलियां मुनक्किद करने का मंसूबा बनाया जा रहा है। हाल ही में कांग्रेस पार्लियामानी पार्टी की सदस्य सोनिया गांधी ने अरकान पार्लियामान की मीटिंग के दौरान कहा था कि मुल्क की सबसे पुरानी पार्टी 4 रियासतों में आरामदेह हालत में है, लेकिन इसे मुतमईन नहीं होना चाहिए। इसी सिलसिले में 13 अगस्त को दिल्ली में मल्लिकार्जुन खड़गे की सदारत में AICC के तमाम ओहदेदारों और रियासती यूनिट के सरबराहों की मीटिंग होगी। इजलास में आइंदा असेंबली इंतखाबात के लिए लाएअमल तैयार किया जाएगा। इस सिलसिले में हरियाणा के AICC इंचार्ज दीपक बाबरिया ने कहा कि हरियाणा में उनकी मुहिम जोरदार तरीके से चल रही है। रियासत के तमाम सीनियर लीडर निचली सतह पर अवामी राब्ता मुहिम चला रहे हैं। उन्हें बहुत अच्छा जवाब मिला है। टिकट के मुतलाशी कौन है? उन्होंने कहा कि राहुल गांधी और खड़गे की भी रैलियां होंगी। पीर को जहानाबाद में भगदड़ बचने से 7 अफराद की मौत हो गई। जाँ बहक होने वालों में 5 खवातीन भी शामिल हैं। ये दर्दनाक हादसा विनावर पहाड़ी पर वाक़े सुधेश्वर नाथ मंदिर में भगदड़ की वजह से पेश आया। पीर को जल अभिषेक के लिए बहुत से लोग जमा हुए थे। वाकया रात 12 बजे के करीब पेश आया। दरअसल पीर को मखदूमपुर ब्लॉक के विनावर पहाड़ी में वाक़े बाबा सुधेश्वर नाथ मंदिर में जल अभिषेक के लिए अकीदतमंदों की भीड़ जमा थी। रात गए अचानक भगदड़ मच गई। इस वाक़े में 7 अफराद अपनी जान से हाथ धो बैठे। जाँ बहक होने वालों में 5 खवातीन और 2 मर्द शामिल हैं। ताहम हलाकतों की तादाद में इजाफे का इम्कान है। मरने वालों के रिश्तेदारों ने कहा कि सब लोग पानी चढ़ाने के लिए विनावर गए थे। लोग पहाड़ी पर चढ़ रहे थे और कुछ नीचे भी उतर रहे थे। इसी दौरान भगदड़ मच गई। पुलिस इंतजामिया की तरफ से कोई इंतजाम नहीं था। भगदड़ को रोकने से बचाने के लिए पुलिस ने अकीदतमंदों पर लाठीचार्ज किया। इस हवाले से पुलिस अफसर ने कहा कि तमाम लोग विनावर में पानी चढ़ाने के लिए जमा हुए थे। इस दौरान भगदड़ की वजह से कुछ लोग दब गए। अब तक 7 अफराद हलाक हो चुके हैं। हिजबुल्लाह ने एक बार फिर इस्राएली अहदाफ को निशाना बनाया। इस मरतबा हिजबुल्लाह ने तकरीबन 30 रॉकेट इस्राएली इलाके में फायर किए हैं। इस्राएली डिफेंस फोर्सेस ने एक बयान जारी किया है जिसके मुताबिक रात के वक्त लबनान से शुमाली इसराइल की जानिब तकरीबन 30 रॉकेट फायर किए गए। टाइम्स ऑफ इसराइल ने इस वाक़े की तस्दीक की है। इसराइल की जानिब से हमास के एक सीनियर कमांडर की हलाकत के दावे के बाद हिजबुल्लाह का यह पहला बड़ा हमला समझा जा रहा। हिजबुल्लाह से वाबिस्ता अल मयादीन साइट के मुताबिक लबनान में कायम हिजबुल्लाह ने हमले की जिम्मेदारी कबूल की है। इस हमले में इसराइली फौजी ठिकानों को निशाना बनाया गया है। टाइम्स ऑफ इसराइल की रिपोर्ट के मुताबिक इसराइली डिफेंस फोर्सेस का कहना है कि उनमें से कई रॉकेट खुले इलाकों में गिरे और कोई जानी नुकसान नहीं हुआ। इसराइली फोर्सेस का कहना है कि हम इस समत हमला कर रहे हैं जहां से रॉकेट फायर किए गए थे। इस हमले के बाद अमेरिकी वजीर दफा लॉयड ऑस्टिन ने खित्ते में बढ़ती हुई कशीदगी के दरमियान मशरिक वुस्ता में गाइडेड मिसाइल आबदोज की तैनाती का हुक्म दे दिया। इससे कबल हिजबुल्लाह ने 6 अगस्त को शुमाली इसराइल पर ड्रोन हमला किया। इस हमले में कम से कम 7 इसराइली शहरी जख्मी हुए थे। हिजबुल्लाह बारहा ये बात वाज़ेह कर चुका है कि जब तक गजा में मुस्तकिल जंगबंदी नहीं होती वो इसराइल पर अपने हमले जारी रखेगा। हमास ने गजा में जंगबंदी के सालिसों से कहा कि वो मुज़ाकरात के मजीद दौरों में जाने के बजाय पहले से तयशुदा करारदादों पर अमल दरामद का मंसूबा पेश करें। एक मीडिया इदारे ने ग्रुप के हवाले से बताया कि गजा तनाज़ो के आगाज से ही हमास जंगबंदी के मुआहदे तक पहुंचने और गजा के लोगों के खिलाफ जंग के खात्मे के लिए मुसिर और कतर में सालिसी की कोशिशों को कामयाब करने के लिए बेचैन है। उसने जंग को रोकने की किसी भी कोशिश के लिए अपनी हिमायत का इआदा किया है। वाज़ेह है कि गुज़िश्ता रोज अमेरिकी सदर जो बाइडन ने कहा कि गजा में सीज फायर का मुआहदा उनकी सदारत के खात्मे से पहले मुमकिन हो सकता है। अमेरिकी सदर जो बाइडन से एक इंटरव्यू में पूछा गया कि क्या उनकी सदारत की मियाद में 5 माह बाकी हैं, इस दौरान सीज फायर हो सकता है, जिस पर उनका कहना था कि हाँ ये अब भी मुमकिन है। गौरतलब है कि हमास ने मुज़ाकरात के कई दौर में शिरकत की है और गजा की आवाम के मफादात और मकासद के हुसूल के लिए जरूरी लचक और मुस्बतियत फराहम की है।
بیان کے مطابق حماس اور سالسوں کو معلوم ہے کہ اسرائیل کے حقیقی عزائم کیا ہیں. اس کے باوجود حماس جولائی کے اوائل میں طے پانے والے حتمی معاہدے پر رضامند ہو گئی. تاہم اسرائیل نے مذاکرات کے دوران نئی شرائط رکھی اور غزہ پر حملے تیز کر دیے. ایلن فو نے اپنی لمبائی میں اضافے کے لیے اپنی ٹانگوں کی سرجری کروائی جو بالآخر ایک خطرناک تجربہ ثابت ہوا. یہ سن 2016 کی بات ہے جب 49 سالہ ایلن کی قد بڑھانے کے لیے 5 بار سرجری ہوئی. اس میں ان کی زندگی بھر کی کمائی لگ گئی اور وہ اپنے سرجن کے خلاف قانونی کارروائی کرنے پر مجبور ہو گئے. لیکن یہ مقدمہ جولائی میں ڈاکٹر کو بغیر کسی سزا کے نمٹا دیا گیا، لیکن ڈاکٹر کو ایک خطیر رقم ادا کرنی پڑی. سرجری کے بعد کی تکالیف میں ایک بار پھر ان کی ٹانگ میں موجود لوہے کا ایک کیل ان کی ہڈی میں گھس گیا، جبکہ ایک بار انہیں یوں لگنے لگا کہ ان کی ٹانگ کو اندر سے بھنا جا رہا ہے، یعنی انہیں اپنی ٹانگوں میں شدید جلن کا احساس ہونے لگا. ایلن کا علاج کرنے والے ڈاکٹر نے کسی بھی قسم کی لاپرواہی برتنے کی تردید کی اور کہا کہ کچھ پیچیدگیوں کے بارے میں ایلن کو پہلے سے آگاہ کر دیا گیا تھا اور کچھ مسائل ان کے اپنے اعمال کا نتیجہ ہے. برٹش آرتھوپیڈک ایسوسی ایشن کے سابق سربراہ پروفیسر ہمیش سیمسن خبردار کرتے ہیں کہ مکمل صحت یابی کے لیے اس عمل میں 2 سے 3 ماہ لگتے ہیں، لیکن آپ پوری طرح سے کام کرنے کے لائق ہوں اس کے لیے مزید 2 گنا زیادہ وقت لگتا ہے. زیادہ تر لوگوں کے لیے اس میں 1 سال لگ جاتا ہے. ایلن کا خیال تھا کہ وہ بڑی رقم خرچ کرنے کے بعد محفوظ رہے گی، لیکن مالی مسائل کے علاوہ انہیں دیگر مسائل کا بھی سامنا کرنا پڑا. وہ کہتی ہیں کہ انہوں نے اپنی زندگی کے بہترین سال گنوا دیے. وہ جانتی ہیں کہ لوگ یہ سننا پسند کریں گے کہ انہیں اس پر پچھتاوا ہے، لیکن اگر آج کوئی ان سے پوچھے کہ کیا اگر انہیں یہ معلوم ہوتا کہ ان کے ساتھ یہ سب کچھ ہوگا تو کیا اس کے باوجود وہ یہ سرجری کرواتی، وہ یقین سے کہہ سکتی ہیں کہ بالکل نہیں. فکر و نظر کی خاص بلیٹن دوربین کی گزشتہ پیشکش میں دلشاد، امیر حسن، محمد غفران ساجد، محمد اسد اللہ، وسیم احمد، محمد نصیر الدین، محمد سالک، ساجد رحمان، قمر انیس، محمد صادق صاحبان نے اپنا قیمتی تبصرہ کر کے ہماری حوصلہ افزائی کی ہے. ہم اپنے تمام ناظرین کا شکریہ ادا کرتے ہیں. آپ مجھ سے اور ہمارے ساتھیوں سے فیس بک پر بھی رابطہ کر سکتے ہیں. ہمارا فیس بک پیج ہے فکر و نظر آفیشیل. شکریہ.